Okay students, so let's start off with the lecture 2 of class 10. Now last class what we have discussed, we have told you we will be doing separately. One is that of the current electricity and that of the ray optics. Okay, we will do parallel because many schools are following current electricity, many schools are following ray optics. Okay, so once I have done the lecture 1 of current electricity, let's start off with the lecture 1 of ray optics. Then I will post the lecture 2 of current electricity and the lecture 2 of ray optics. So let's start with optics. Now one of my favorite chapters. Okay, electricity and optics, one of my favorites. Okay, so before starting on to optics, let's see a briefing. What is optics? So we have seen कि optics ये होता क्या है? Sir, light. Sir, जब भी optics के दिमाग में आता है, what is this? It's light. Now what is light? Light होता क्या है? What is light? Light is nothing. Light is a form of energy. Yes sir. Perfect. Light is a form of energy. Now you have done this thing in class 7 and 8. Now how they are a form of energy? Yes. Now we can say it is consisting of packets of energy. Sir, ये क्या होगा? Packets of energy मतलब क्या होगा? Sir, suppose this is a ray of light. If you imagine the ray of light to be broken into small pieces, you find one small packet of energy. Okay, so these are the small packets of energy. Now, हर एक packet का energy होता है. The smallest packet. Now, this smallest packet is termed as photon. It is termed as photon. And what is the energy of a photon? अब देखो कि sir light up, when I am using the light, what is light? Light is nothing but a form of electromagnetic wave. Everyone knows this thing. Yeah, we have done this thing from class 8. This is a form of an electromagnetic wave. Okay. Now if it is a form of an electromagnetic wave, every electromagnetic wave has a particular frequency. Has what? Has a particular frequency. The frequency with which it travels. Now, the energy of a photon is given in this way. Some constant which we did not need to know into that frequency. Now many students will say, sir, I know what is this constant. Yeah, I also know what is this constant. This constant is named as Planck's constant. This is named as Planck's constant. This is a constant, a value which we don't require. I'm just talking about the basics of light. Okay, so it is only light. Sir, a red light. Now, what is this light? What is this light, sir? Is it every light? Now this is the first confusing part. Now whenever we are talking about light, are we talking about the colors? We are not talking about the colors. Yes, we will be talking about the colors. Now light is depending on frequency. Yes. What light? Sir, color of light. Color of light depend on frequency. That means every color, just hold on a second, every color will have different frequency. Every color will have different frequency. This is one of the most important segment. Every color of light will have different frequency, and the frequency is always constant. Means the energy of light is always constant. The energy of the photon is a constant thing. It neither loses nor increases. So this is the basics of light. Now, how to differentiate the colors and everything, we will do it. Then we will be coming on to the concept of reflection of light. Okay? So, let's start off with the next topic.
Now, next, sir, what we have seen key optics means light, light means frequency, light means first of all energy, energy depends on frequency, and which are the things? Color of the light also depends on frequency, and the frequency is constant. Irrespective of any medium, frequency is constant. Constant, I will write irrespective of any medium. Irrespective of any medium, the frequency of light is constant. Now, till now we have done this thing. Now we will be talking about, sir, how any wave. Suppose if I talk about any wave, see, you know this thing, you have learned this thing in class 9. Any wave, this is, say, this is lambda. This is called the wavelength. This is called the wavelength of the wave. Now, v is the velocity of the wave with which it travels. Velocity of the energy means, suppose if I am talking, say I am speaking, okay, so my sound is being transported from this point to other point with a velocity, that is v, velocity of the wave. Now we can say velocity is given by total wavelength by a single time period. Now, how this is coming? This we have already studied in class 9, so I am not delving into it. Velocity of a wave is lambda by t. It can also be written as lambda into frequency, because frequency is given by 1 by time period. Now you have to say, sir, velocity is equals to lambda f. F is equals to velocity by lambda. Yes, and this is constant. Means if velocity increases, lambda increases. If velocity decreases, lambda decreases. Now this is the basic fundamental of light. Now let us talk about some divisions. Okay, what we will be studying? We will be basically studying with first part, it's reflection of light. Now what do you mean by the term reflection? Sir, we have done this topic in class 8. Okay, so it's not new to us. Yeah, we will be saying one thing, but one important thing which we actually don't know. Let us do this. Suppose if I take a surface. Now if I take a surface, now listen to this thing very carefully. Let me explain you with the help of a book. Suppose on this surface, say this is the surface. On this surface I am imagining a plane. On this surface I am imagining a plane. So what is this plane? Now this is very important. Suppose if a ray of light is coming and hitting to this point. If a ray of light is coming and hitting to this point, let us draw an imaginary normal. Let us draw an imaginary normal. This imaginary normal, and this is I, this is R. This I is termed as angle of incidence and R is termed as angle of reflection. Now what is this plane? Yeah. Now you should keep in mind, see, for your easy thing, this is a plane surface. Now assume this is a प्लेन सरफेस. बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा ये चीज सर अगर ये सरफेस है, ray of light, if a ray of light is coming like this way and going like this way and the normal is something like this, then all the three, means the incident ray, the normal and the reflected ray will be lying on this particular plane.
Okay, this is very important. Means it can't happen कि incident ray is going like this and going like this. No. If the incident ray goes like this, it has to goes like this. If the normal is something like this. If the incident ray is going like this, it has to go like this. Okay. So keep in mind this all the three. So incident, normal and reflected ray will together form a plane. Will together form a plane. Means you can assume this thing in a plane. Okay. And what is that important thing? Now point is normal is always perpendicular to the surface. Normal is perpendicular to the surface. So sir ये जो plane होगा ये भी क्या होगा? ये भी surface के ऊपर perpendicular होगा. Now मैंने assume कर लिया कि ये plane surface है. मैंने assume कर लिया ये plane surface है. अगर ये plane surface नहीं है तो सर क्या होगा? तो हम लोग आएंगे. रुको एक सेकंड. So अब मैं दिखाऊंगा कि the plane is perpendicular to the point of contact. Now this is a beautiful term कि अगर surface irregular है रहने दो. If the surface is irregular, I don't have any problem, but it should be taken into count कि जहां पर सोचो कि surface regular नहीं है, surface ही ऐसा है, तो normal भाई इस point पे ऐसा होगा. नॉर्मल और सरफेस के बीच हर वक्त कितना एंगल रहेगा सर 90 डिग्री. और ये प्लेन भी कितना एंगल तैयार करेगा सरफेस के साथ 90 डिग्री. सो द प्लेन एंड द नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बेसिक एग्जांपल. आई होप दिस इज क्लियर. Now, so sir, what we are saying कि suppose sir अगर ये surface irregular है, कोई दिक्कत नहीं, irregular है, लाइट अगर यहाँ पर हिट करेगा, सोचो लाइट यहाँ पर हिट करेगा, तो एक काम करो सर, इसके हिसाब से एक नॉर्मल ड्रॉ करो सर. इसके हिसाब से नॉर्मल ऐसा होगा. देखो ये हो गया नॉर्मल और रे चला जाएगा ऐसा. अगर रे इस तरफ से हिट किया तो नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल ये होगा. और रिफ्लेक्टेड रे कैसा हो जाएगा सर ये आपका. सो दैट दिस एंड दिस आर ऑलवेज इक्वल. सो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ irregular surface. Means normal at different point, this is n1, this is n, are different. Okay, so that's not our concern. So what is the basic concern? Yeah, basic concern is our plane mirror, sir, or any sort of polished surface. यही तो बात है सर, यही सब हम लोग करेंगे. Plane mirror, spherical mirror, this we will do doing the reflection part. Okay, so first, yeah, very basic. We can't see the mirror in 3D. We will use the mirror as 2D. We will use the mirror as 2D. And since the mirror is plane, I will draw something normal like this. This is the incident ray. This is the reflected ray. Okay, this angle is equals to this angle. This is I, this is R. Now this is actually rubbish. Huh? Yes, this is rubbish. Yes sir. ये क्लास 10 के लिए सही है, क्लास 12 में ये गलत है. इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल नहीं सकते. क्या बात है सर, आप क्या बोल क्या रहे हो? Why you can't say the angle of incidence this way? No. This I is a measurement of the angle formed. सर एकदम समझ में नहीं आया ये आपने क्या बोला. देखो ये सब एक्चुअली गलत है, बट हम लोग को
छोटे जब when we were very young we used to learn this thing कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंगल आई तैयार करते हैं, बस यही चीज, बट ये एक्चुअली ये गलत है। सर क्यों गलत है? अब मैं ये छोटे से तरीके से समझाऊंगा। नॉर्मल का डायरेक्शन ऊपर होता है एन, ओके। अब देखो रे ऐसा आता है, ओके। जब तुम लोग छोटे थे, व्हेन वी वर स्मॉल, वी यूज्ड टू से कि 60 डिग्री, 60 डिग्री कब फॉर्म होता है? जब एक पॉइंट से दोनों चीज इमर्ज आउट होता है, तभी हम लोग इसको 60 बोलते थे। क्या हम लोग कभी बोलते थे कि भाई ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये 60 डिग्री? नहीं, ये कभी नहीं बोल नहीं सकते। दिस इज गलत। ये सही है कि एक पॉइंट से या इधर दोनों चीज इमर्ज आउट हो रहे हैं या फिर एक पॉइंट पे दोनों चीज टर्मिनेट हो रहे हैं, ये भी सही है। तभी हम लोग बोलेंगे कि सर द एंगल इज फॉर्म, देन ओनली आई विल से द एंगल इज फॉर्म। बट यहां पर क्या हुआ है? देखो इंसिडेंट रे एरिया है, नॉर्मल ये है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। अब तुम बोलोगे सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का तो आर सही है, बट ये आई तो फिर गलत है। हाँ, आई गलत है, बट हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग आई को ऐसे समझेंगे, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल फॉर्म, नथिंग मोर देन दैट। ओके, आई वोंट यूज मच मोर लॉजिक टू एक्सप्लेन, जस्ट हाँ मेजरमेंट। बट राइट नाउ वी विल से समथिंग व्हिच इज नेम्ड एज angle of deviation. Now this is beautiful thing. इसको जानना बहुत जरूरी है बिकॉज ये तुम्हारा काम में आएगा अभी जस्ट नेक्स्ट बोर्ड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन मतलब सोचो कि एक रे ऐसा जा रहा था, इस रे को, इस लाइन को तुमने ऐसा घुमा दिया, इस रे को तुमने ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया। सर कैसा घुमा दिया? सर दिस इज व्हाट? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। कितना घुमा दिया? सोचो 30 डिग्री, सोचो 30 डिग्री। सो आई विल से 30 डिग्री एंटी क्लॉक, आई विल यूज दिस वर्ड, एंटी क्लॉक इज द एंगल ऑफ डेविएशन। आई विल यूज दिस टर्म्स कि 30 डिग्री एंटी क्लॉक इज द एंगल ऑफ डेविएशन। आई विल यूज द कंप्लीट दिस सिनेरियो. I won't use any other scenarios. Okay, so now when I say कि this is the original one, this is the original, this is original, this is after deviation. Okay, अब सर अगर ये ओरिजिनल होता और इसको तुम क्लॉकवाइज घुमाते तो तुम क्या बोलते? एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज. ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लेन मिरर and the angle of deviation. Now I will proceed on to the next topic. Now, sir, we are right now talking about angle of deviation. So, let's do bit of it. Suppose this is the normal, this is the ray of light. See, arrows are very important, okay? This is I, measurement. This is R. This is the measurement, okay? सर अगर यहां पर मिरर नहीं होता, अगर यहां पर मिरर नहीं होता तो वो रे ऐसा चला जाता। हाँ सर ऐसा चला गया। तो अब बता रहे हो कि ये मिरर अगर नहीं होता तो ऐसा जाता। अच्छा ये क्या है सर? फिर ये हमारा ये हो गया 90 माइनस आर, फैंटास्टिक। ये हो गया 90 माइनस व्हाट सर? सर सिंपल सर आई और आर आपका सेम है, आई और आर अगर सेम है तो ये भी होगा आपका 90 माइनस आर। हाँ एकदम पक्का। तो ऐसा क्या मैं बोल सकता हूं? कैन आई से समथिंग लाइक दिस? कोई बंदा ऐसा जा रहा था, मैंने उसको घुमा के ऐसा कर दिया। ओके, आई हैव मेड द रे टर्न इन दिस सेंस। इन व्हाट सेंस? इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। फॉर दिस केस अगर इस रे ऐसा होता तो इस रे को हम लोग ऐसे घुमा देते। सो इन दिस केस आई से द एंगल ऑफ डेविएशन दैट विल बी, सर ये हुआ आपका इंसिडेंट, ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड।
इसको आपने घुमा के ऐसा कर दिया। ओके, किसने कर दिया? मैंने नहीं किया भाई, इसने मिरर ने किया। ओके, मिरर ने किया। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया सर? 180 माइनस 2r, 180 माइनस 2r, और सर और हम लोग इसको बोल सकते हैं 180 माइनस 2i, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको सर? 180 माइनस 2i। सर i और r सेम। नाउ एक और बात सर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड reflected ray? 99% teachers also say this thing wrong. They say 2i. ये गलत है भाई, ये गलत है। क्यों? ये एंगल नहीं है। एंगल किसको बोला जाता है? जब कोई एक पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट कर रहे, तो ये हुआ तुम्हारा एंगल। तो ये क्या हो गया? 180 minus 2i. This is the angle between the reflected ray and the incident ray. So this is a very interesting thing. Keep in mind, this is a star. Okay. So right now, what we have seen? We have seen what is angle of deviation. What is the relation between the incident ray and the reflected ray? Now we will delve into some beautiful concept. Sir, क्या है? Sir, छोटा सा concept है. देखो. प्लेन मिरर ऐसा था, ऐसा है। अब ये एक इजी क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इसका दो पार्ट है। मैं हर वक्त एक ही पार्ट बोलता हूं, बट अचानक 2014 में एक स्टूडेंट पूछ लिया कि सर ये अगर होगा तो क्या होगा, तो इसीलिए मैं अभी दो पार्ट ही बोलता हूं। तो फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एक एज्यूम कर लेते सर, एज्यूम करने से क्या होगा, फिर इजी बन जाएगा। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखो मैं एक चीज एज्यूम कर लेता हूं। अब देखो बताया कि इफ द मिरर turns by 10 degree, if the mirror turns by 10 degree, keeping the incident ray unchanged, keeping the incident ray unchanged, find the change in the angle. अच्छा, find the deviation of the reflected ray. थोड़ा ब्यूटीफुल कर देते क्वेश्चन को। Find the deviation of the reflected ray. सर अब तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गया। हाँ बहुत बढ़िया बन गया, चलो देख लेते हैं। इसको हटा दो। सर ये डायग्राम थोड़ा दोबारा ड्रॉ करते हैं। अब सर ये क्वेश्चन है, ये टर्न बाय 10 डिग्री क्या बताया है? सर इसको आप पकड़ लो यार एंटी क्लॉक, क्योंकि मैंने 10 डिग्री का स्पेसिफाई नहीं किया, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। चल देखो, ये था तुम्हारा ओरिजिनल मिरर, ये हो गया तुम्हारा फाइनल मिरर। ये कितना डिग्री है भाई? ये कितना डिग्री है? ये 10 डिग्री। पहला okay, I'll drop this thing. अगर कभी भी समझने में प्रॉब्लम हो तो दोबारा देखो वीडियो को। n डैश, ये n, ये देखो जब ये मिरर M1 M2 था, ये M2 डैश M1 डैश, देखो चेंज हो गया। कितना डिग्री से घूम गया सर? 10 डिग्री से घूम गया। तो नॉर्मल उसके साथ अटैच रहता है। नॉर्मल भी कितना एंगल से घूम जाएगा सर? नॉर्मल भी 10 डिग्री से घूम जाएगा।
चलो सर अब एक चीज और बता देते, थोड़ा डायग्राम क्लियर होना चाहिए। हाँ, ओरिजिनली ये n है, तो ओरिजिनली ये जो एंगल हुआ करता था, ये जो एंगल, ये कितना डिग्री था? 60 डिग्री था। ब्यूटीफुल। और ये भी कितना डिग्री हुआ करता था? सर ये भी 60 डिग्री हुआ करता था। अब राइट नाउ तुम्हारा नॉर्मल हो गया n डैश। अभी तुम्हारा एंगल कितना है भाई? सर अभी मेरा एंगल है 50 डिग्री। तो अभी इस नॉर्मल से, ये नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री पे जाएगा? 50 डिग्री पे जाएगा। सोचो, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे डैश, ये हो गया ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड, ये डैश। तो ये टोटल एंगल कितना है भाई? ये टोटल एंगल है 50 डिग्री। अब एक चीज, सर फिर इसने कितना घुमा? इसने कितना घुमा ये जानने के लिए एक ही रेफरेंस यूज करो। एक रेफरेंस, कैसा रेफरेंस यूज करो? सर जो बंदा फिक्स्ड है, जो बंदा फिक्स्ड है उसको रेफरेंस यूज करो। कौन सा बंदा फिक्स्ड है? सर इंसिडेंट रे फिक्स्ड है। देखो इंसिडेंट ऐसा था, रिफ्लेक्टेड ऐसा था। इंसिडेंट ऐसा है, रिफ्लेक्टेड डैश ऐसा है। अब इनिशियली ये पूरा कोण एंगल का वैल्यू था 120 डिग्री। अभी ये 50 है तो ये भी 50 है, तो दोनों का कोण एंगल क्या है? कोण एंगल है, ये कोण एंगल बन गया तुम्हारा 100 डिग्री। तो एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रे ने कितना शिफ्ट मारा? सो रिफ्लेक्टेड रे ने 20 डिग्री शिफ्ट मारा टुवर्ड्स जिस जगह आपने इसको शिफ्ट किया उस जगह मारा। ओके, सो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। सो रिफ्लेक्टेड रे shifted anti-clock by 20 डिग्री। नाउ बहुत लोग बोलते हैं सर इसको जनरलाइज करो। जनरलाइज कैसे किया जाता है? पहले मैं एग्जांपल देके बताता हूं, फिर इसको जनरलाइज करते हैं, क्योंकि आप लोग क्लास 10 हो। अगर मैं पहले जनरलाइज यूज करूंगा सो इट मे हैपन यू मे गेट कंफ्यूज। राइट नाउ check this thing. This is my incident ray. This has turned by an angle theta, so it will also turn by an angle theta. Okay. Now initially I don't know what is the angle. Let cone angle between normal and incident is equals to alpha. सोचो, तो ये क्या बन गया सर? ये एंगल बन गया अल्फा। तो रिफ्लेक्टेड रे, सो कोन एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड क्या हो गया? 2 अल्फा। अभी यार नॉर्मल अगर शिफ्ट हो गया बाय थीटा, राइट नाउ न्यू कोन एंगल क्या है? अल्फा माइनस थीटा। तो न्यू रिफ्लेक्टेड रे से कोन एंगल कितना बनेगा? अल्फा माइनस थीटा। न्यू कोन एंगल और बिटवीन इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड क्या होगा? ट्वाइस अल्फा माइनस ट्वाइस थीटा। तो भाई ये था ओरिजिनल, ये था फाइनल। कितना शिफ्ट मारा इसने 2 थीटा शिफ्ट मारा। सॉरी, ये तो नहीं, मैंने ओरिजिनल ड्रॉ नहीं किया। इसने शिफ्ट मारा 2 थीटा। सो इफ द मिरर टर्न्स बाय एन एंगल थीटा इन एंटीक्लॉकवाइज, रिफ्लेक्टेड turns by 2 theta in the anti-clockwise. If the mirror turns clockwise by theta, so it will also turn clockwise by 2 theta. I hope you have got this concept clear. Even if you have some doubt, you give me a call, I will explain you better. Okay? In WhatsApp and everything or Skype. Okay? I hope this is done. Next, proceed on to next topic. अच्छा, हाँ सॉरी, केस 2 मैंने बताना भूल गया, चलो बता देता हूं। अच्छा, एक बार चेक कर लेते रिकॉर्डिंग चल रहा है नहीं।
तो रिकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सही चल रहा है। अच्छा किया मैंने चार्जर लगा दिया, नहीं तो कब बंद हो जाता पता नहीं यार, पूरा बेकार हो जाता मेरा। नाउ नेक्स्ट इज वंस वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, let us do the same scenario in a different way. Okay, now say two plane mirrors are inclined at, now this is important, are inclined at angle theta. Okay, तो मुझे और एक चीज बताना था, मैं चलो ये क्वेश्चन लिख देते हैं फिर बताता हूं। A ray hitting parallel with respect to one mirror to the other goes away after two reflections. Goes away after two reflections. Find the net angle of deviation. Now this is beautiful question. Beautiful. सोच लो, yeah, there are many things to be specified. This is acute. Okay. Suppose they are the two plane mirrors, mirror M1, mirror M2. They are inclined at an angle theta. मैंने क्या कहा कि या रे हिटिंग पैरेलली विथ रिस्पेक्ट टू वन मिरर। सोचो कि ये पैरेलल आया, ये रे पैरेलल आया इस मिरर के हिसाब से, तो सर सही आने दो मुझे, क्या दो रिफ्लेक्शन के बाद। तो पहले इसको ड्रॉ करो सर, कैसे ड्रॉ किया जाएगा देखो, ये हुआ आपका फर्स्ट नॉर्मल n1, क्योंकि मिरर का नॉर्मल n1, ये जो कोन एंगल सोचो इसका नाम तो सर अल्फा, तो ये भी क्या होगा आपका अल्फा होगा। ब्यूटीफुल। फिर इस मिरर पे पहुंचेगा, देखो चला गया, हाँ सर चला गया, देखो ये हुआ नॉर्मल n2, एकदम सर हुआ n2, ये आपका कितना हुआ बीटा, ये भी आपका कितना हुआ बीटा। चलो एक चीज तो क्लियर है भाई, क्या सर क्या क्लियर है कि ये बंदा 90 डिग्री है, हाँ 90 डिग्री है, तो ये बंदा भी क्या है 90 डिग्री है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको O पकड़ लो, इसको O पकड़ लो, इस पॉइंट को P पकड़ लो, इस पॉइंट को P डैश पकड़ लो, सॉरी P1 पकड़ लो, P1 पकड़ लो और इसको P2 पकड़ लो पॉइंट। अब ये हुआ तुम्हारा ओरिजिनल इंसिडेंट, ये हुआ तुम्हारा रिफ्लेक्टेड। सो व्हाट इज द नेट एंगल ऑफ डेविएशन। देखो स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि सर ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये हुआ आपका या इसको नाम दो, इसको नाम दे तो सर इसका नाम दो फाई, तो फाई हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। जब भी तुम ये लिखोगे, जो भी टीचर बोलेगा भाई ये गलत हो गया, बस whenever you say this thing and whenever you write this thing, this is wrong. Sir, why this is wrong? Because this is not an easy concept. Okay, ये गलत क्यों है भाई? 99% students will do this mistake. 99. Only 1% students who knows the concept won't commit the mistake. मैंने तुमको क्या कहा भाई, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। चलो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हम लोग करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सर एंगल ऑफ डेविएशन जब ऐड होता है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ये हुआ तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। हाँ सोचो तुम्हारा ये एंगल है 30 डिग्री, ये भी है 30 डिग्री, तो ये कितना डेविएशन हुआ सर 120 डिग्री डेविएशन हो गया। ओके, किस तरफ हुआ सर, हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब देखो यहां पर आया, मैंने यहां पर वापस एक मिरर लगा दिया, सोचो जस्ट एज्यूम करो ना, और ये रे ऐसा चला गया, ये रे कैसा चला गया, ऐसा चला गया।
तो ये रे कहां पर जाने वाला था सर? ये रे यहां पर जाने वाला था, बट चला गया कैसे? ऐसे चला गया, देखो ऐसे। ये रे भी घूम गया, ऐसे घूम गया, है ना? तो अब इसका एंगल मुझे पता नहीं, सोचो ये 20 डिग्री है और ये भी 20 डिग्री है, तो इसका कितना घूम गया सर? ये 140 डिग्री घूम गया, 140 डिग्री। तो पहला डेविएशन यहां पर हुआ, देखो ये हुआ इंसिडेंट और ये हुआ फाइनल रिफ्लेक्टेड। पहला ये आया और ऐसा घूम के चला गया ऐसा, फिर वो यहां पर जाने वाला था और वो ऐसा घूम गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल D1 इज द फर्स्ट डेविएशन। मैं क्या लिखूंगा? 120 डिग्री पे लिखूंगा और लिखूंगा यहां पर एंटी क्लॉक। D2 दूसरा डेविएशन। सर ये कितना हुआ? ये हुआ 140 डिग्री। ये भी क्या हुआ सर? ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो अल्टीमेटली रे कैसा था? अल्टीमेटली ये रे था, ये पूरा ऐसा घूम के ऐसा चला गया। सो टोटल डेविएशन सर 120 डिग्री, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है सर? हाँ सर, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है। प्लस 140 डिग्री, 260 डिग्री एंटी क्लॉक। सर एक और भी केस हुआ करता था, वो मैं बाद में बता रहा हूं, पहले ये सब तो कर रहे थे, फिर दूसरा वाला केस करेंगे। ये एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, याद रखो सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। फर्स्ट कितना एंगल डेविएशन हुआ सर? ये तो oh my god, I have got corona, I think so, no, okay, I am saying this thing online, don't publish it or else I won't be taking your classes. So first deviation D1, 180 minus 2 alpha. What is the next deviation? Sir ये देखो D2, 180 minus 2 beta. वो सर ये भी ऐसा था, ऐसा था मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये भी ऐसा था। दोनों ही क्या है? दोनों ही आपका एंटी एंटी है। टोटल डेविएशन क्या है भाई? सर दोनों का ऐड करो, 360 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सर इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये तुम्हारा इंसिडेंट था, एक बार घूम के ऐसा आया, दूसरा बार घूमा, तो एक्चुअली कौन सा एंगल हुआ? ये एंगल हुआ तुम्हारा टोटल डी। ये जो एंगल हुआ ये हुआ तुम्हारा टोटल डी। बट सर आंसर तो हमें अल्फा बीटा नहीं पता था। मुझे पता है तुम्हें अल्फा बीटा नहीं पता है, तो सर सिंपल सी चीजें कैसे कर रहे हैं? देखो ध्यान से, ये जो देखो, इसको एक O और इसको O डैश बना लो। P1 O डैश, P2 O। ये क्या बन गया सर? ये एक क्वाड्रिलैटरल बन गया, जिसका ये दोनों साइड क्या है? 90 डिग्री है। ओके, तो ये दोनों साइड मिलके क्या होगा? ये दोनों साइड मिलके वापस 180 डिग्री होगा। सोच लो ये क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दिया तुमने? ये अगर दोनों एंगल 90 डिग्री बन गया तो ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए ना। तो ये अगर थीटा बन गया, ये क्या हो गया? 180 माइनस थीटा। अब तुम्हें ये ट्रायंगल पे देखो, अच्छा तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, फ्रॉम क्वाड्रिलैटरल, ये सब भी लिखना पड़ रहा है। क्या हाल है भाई ऑनलाइन का? OP1 O dash P2, so angle OP1 O dash is equals to 90 degree is equals to angle OP2 O dash। ये दोनों 90 डिग्री है भाई, तो ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, बस खत्म। और ये ट्रायंगल में तीनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा हैज टू बी इक्वल्स टू 180। तो सर 180 माइनस 180 कट हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज द टोटल डेविएशन? 360 डिग्री माइनस 2 theta is the total deviation. You have to assume this is acute. This angle is acute. अगर ये acute नहीं है भाई तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलो वो अलग बात है। चलो सर ये हुआ आपका एक सिनेरियो। ये एग्जांपल मैंने ऐसे दिया और एक सिनेरियो होगा। पहले now this is a very important board. You go through this board very carefully. If you have any doubts, then note it down, give me a call, ask me. Okay?
Hopefully you won't have doubt. Then I will rub this thing off. I will show the next case. Okay. चलो. Now, next case, I have kept this one so that you can understand it better. Sir, वही चीज ड्रॉ करो, वही ड्रॉ करते सर. चलो चलो ये रे जा रहा है. अभी एक मिरर को मैंने ऐसा प्लेस कर दिया. हाँ ठीक है सर, चलो प्लेस कर दो. और ये रे ऐसा चला गया. ये तुम्हारा था 30 डिग्री, ये था 30 डिग्री. अब ये बन गया, सोचो 80 डिग्री, और ये बन 80 नहीं, कुछ 60 डिग्री बना. हाँ, अब फर्स्ट यहां पर जो डेविएशन हुआ वो ऐसा हुआ. कैसे हुआ? ऐसा. तो D1 को मैं क्या लिखूंगा? 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री. हाउ आई विल राइट इट? आई विल राइट इट एंटी. अब ये वाला रे ऐसा जा रहा था, देखो ऐसा ऐसा फिर ऐसा. ये वाला रे ऐसा जा रहा था, बट बंदा ने ऐसा घूम गया. अब बंदा कैसा घूम गया? अब बंदा ने क्लॉकवाइज घूम गया. तो D2 क्या होगा? D2 होगा ये वाला सर, 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, बट इट इज clockwise. Now if I say what is the net deviation? Net deviation will be 120 degree plus of minus 60 degree, that is 60 degree anti-clockwise. Means if I find the net deviation between the reflected ray, final, this is what? This is the final reflected ray, and this is the इंसिडेंट रे. सर इसका एंगल का मतलब क्या हुआ? ये जो एंगल देखो, ये जो एंगल तुम्हारा तैयार हुआ, ये हुआ तुम्हारा यहां से जो ये कोण एंगल हुआ, ये हुआ 60 डिग्री. हाँ, यही तुम्हारा हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, नेट डेविएशन. सो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट. सो सर नेक्स्ट व्हाट वी विल डू? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? चलो देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे. होपफुली वी विल बी डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर बहुत लोग जानते हैं सर कि यार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस. हाँ ये सही है, बट ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पर एक ऐड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, और यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, तब सही होगा. तुम्हारे हिसाब से नहीं भाई. ये प्लेन मिरर है, हाँ है. इसके हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट यहां पर हो तो इस मिरर के हिसाब से इमेज यहां पर होना चाहिए. इसके हिसाब से अगर ये x हो तो इसके हिसाब से ये भी x होना चाहिए. एट एवरी instant, at every instant, at every instant. Now this is very basic. Sir next star point बताइए. हाँ next star point. भाई ये तो बहुत क्लास 8 में we see. When can I see a person or some object? When the light reflected from that body reaches my eye. Keep in mind. मैं इस बोर्ड को तभी देख सकता हूं जब लाइट बोर्ड पे हिट करेगा और मेरे आई पे पहुंचेगा, तभी मैं इस बोर्ड को देख सकता हूं. अगर मैं लाइट ही बंद कर दूं, यार ये लाइट को अगर हिट नहीं करेगा तो मैं बोर्ड को देख नहीं पाऊंगा. सो द ओनली केस व्हेन आई कैन सी द बोर्ड इज व्हेन द रे ऑफ लाइट विल हिट द बोर्ड एंड विल रीच माय आई, देन ओनली आई कैन सी द बोर्ड. क्लियर? सो विद दिस कॉन्सेप्ट लेट्स प्रोसीड टू दिस वन. सोच लो यार, ये मिरर है. मिरर है यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है.
हाँ है सर, ये ग्राउंड है, मिरर, अच्छा मैं इसको ऐसे करता हूं, हाँ एकदम है, ये तुम्हारा आई लेवल है, ये है हमारा आई लेवल। अब देखो लाइट तो कहीं से आना पड़ेगा ना, लाइट कहां से सर, लाइट कहीं पर भी हो सकता है, लाइट कहीं पर भी हो सकता है, लाइट यहीं पर हो सकता है, यहीं पर हो सकता है। सोच लो लाइट ऐसे आ रहा है, लाइट आ रहा है ऐसा, लाइट आ रहा है, तो लाइट ने क्या किया, लाइट ने ऑब्जेक्ट को हिट किया, ऑब्जेक्ट को हिट किया, ऑब्जेक्ट ने मिरर को हिट किया, फिर मेरे आई पे आया, फिर मेरे कहां पर आया, आई पे आया। देखो ध्यान से, तो अब मुझे क्या लगा, अब क्वेश्चन है कि सर एक रे जब हिट करता है ऑब्जेक्ट से तभी मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं, ये गलत बात है भाई, ये भी एक सरासर गलत है, बहुत सारे बुक्स में लिखा जाता है ये गलत है। एक रे हिट करने से तुम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, बहुत सारा रेज आना चाहिए ऑब्जेक्ट से तब तुम देख सकते हो। और मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया कि भाई ये तो यहां पर है, मैंने सोच लिया कि भाई ये अगर x है और ये भी x है। सर ये आपने सोचा, नहीं ये मैंने नहीं सोचा, ये जियोमेट्री कह रहा है, ये जियोमेट्री कहेगा, कैसे जियोमेट्री कहेगा वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज, अब तुम देख किसको रहे हो भाई, सर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के उस तरफ इमेजिन कर रहा हूं, मैं देख नहीं रहा हूं, हम लोग देख नहीं पाते, हम लोग का ब्रेन इमेजिन कर लेते कि वो यहां पर है, दैट्स व्हाई वी से कि वी सी, तुम दिस इज वर्चुअल, दिस इज ऑब्जेक्ट, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को तुम ब्रेन में इमेजिन करते हो, रियल ऑब्जेक्ट को तुम एक्चुअली देख सकते हो। ओके, ये सब चीज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज सब लोग हम लोग करेंगे थोड़े देर बाद। ओके, नाउ आई होप दिस इज क्लियर, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सर यही केस को हम लोग थोड़ा इलैबोरेटली करते हैं, चलिए एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। हाँ, अब कैसे ड्राइंग होता है ये मैं कोशिश करता हूं तुम्हें दिखाने के लिए, मुझे पता नहीं कि मैं एकदम सही जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, थोड़ा अगर गड़बड़ हो जाता है भाई, ड्राइंग में अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है तो माफ कर देना। Now this is the drawing, yeah, almost correct. Sorry. ठीक है, this is the full eye vision. This is the full eye vision. Okay. एक चीज याद रखो, ये फुल आई विजन है हमारा। ओके, नाउ ये एक ड्राइंग हुआ, ये एक ड्राइंग हुआ, अभी बहुत सारा ड्राइंग हो सकता है, तो इस पे हम लोग फोकस नहीं है, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस, बट आई एम नॉट फोकस्ड ऑन दिस थिंग, व्हाट वी आर फोकस्ड ऑन। ओके, ये एक ड्राइंग है, इसको याद रखो कि ऐसा होता है सर, एक रे से काम नहीं बनता, हम लोग जिस पे फोकस है वो ही ये कि आई लेवल, आई लेवल। एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड सो एज टू सी द image of a person completely in a plane mirror, so as to see the image of the person completely in a plane mirror। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन की
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल बी यूजिंग सम टेक्निक्स. व्हाट इज दैट टेक्निक सर? कि यार ये जो मिरर है ये कहां पर चिपका हुआ है और मैं कहां पर हूं. सर ये सोचो कोई घर में कोई दीवार है, घर में कोई दीवार है, तुम मिरर को यहां पर रख रहे हो. घर में दीवार तो बहुत जगह हो सकता है बट मिरर तो पूरा नहीं होगा ना. सोच लो मिरर ये है, मिरर इतना है, ओके. ये है तुम्हारा फ्लोर लेवल, ओके. या फिर मिरर कितना होगा मुझे पता नहीं सर, मिरर इतना भी हो सकता है. और तुम कितना हो भाई? सर मैं इतना हूं, मैं इतना हूं. अब क्वेश्चन क्या है कि तुम खुद को पूरा कब देख सकते हो? यस, मैं खुद को पूरा तब देख सकता हूं जब मेरा एकदम सोचो, दिस इज माय व्हाट लेवल? आई लेवल. दिस इज व्हाट? आई लेवल. ये तभी होगा जब एकदम फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ माय बॉडी a ray of light will come and hit the mirror and reaches my eye. इसीलिए मैं मेरा टॉप को देख सकता हूं. और बॉटम को तुम कब देख सकते हो? जब बॉटम से कोई रे आएगा और मेरा आई को हिट करेगा. भाई एक ही रे हो सकता है, हाँ, ये ज्यादा रे नहीं हो सकता है. यहां से यहां मतलब रे बॉटम को छू के तुम्हारे आई तक पहुंचेगा, ये एक ही रे होगा. और तुम्हारा सर को छू के तुम्हारा आई पर पहुंचेगा, ये भी एक ही रे हो सकता है हिस्सा. और तुम्हारा मिरर तुम्हारा इतना हो सकता है भाई. अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर अगर ये रे यहां पर हिट करता तो भाई आई पे नहीं आता. तो आई पे आने के लिए एक ही रे होगा, मतलब एक ही पॉसिबल केसेस है, एक ही पॉसिबल. अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला एक रे से काम नहीं चलेगा, तो मेरा आई तो एक लेवल पे नहीं रहता है ना. आई तो थोड़ा एक है, डायमेंशन है ना आई का. तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आई एक सिंगल लेवल है. I am assuming that I is a single level, so only one ray is possible to go and hit the mirror and go and like this. Clear? So this is the only case which is possible. Now, what's the idea what I am ready to share? तो मैं क्या बोलना क्या चाहता हूं भाई? What I am trying to say, भाई मैंने क्वेश्चन में ये कहा what is the minimum height of the mirror. मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर चाहिए था ना. हाँ सर मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर चाहिए. तो ये जो मिरर है ये तुम्हें चाहिए? नहीं सर ये नहीं चाहिए. मुझे अगर इतना ही मिरर मिल जाए तो काफी है, मैं देख सकता हूं. कैसे देख सकते हो सर? ऐसा. I can completely see myself over here. I can completely see myself over here. अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी क्या होना चाहिए? x है. अब सर इसको हम लोग कैसे करते? देखो सोच लो, ये अगर तुम्हारा h1 है तो ये भी क्या होगा? h1. सर ये कैसे हुआ? दिस इज मैजिक. इसको याद रखो. अरे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं भाई. ये और ये एंगल सेम है और ये ट्रायंगल में से ये दोनों सेम होना चाहिए. मैथमेटिक्स. अब देखो ये एंगल और ये एंगल भी सेम है, तो ये अगर तुम्हारा h2 है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा? h2 होगा. सही बात है सर. ये तुम्हारा मिरर का लेवल है. हाँ ये मेरा मिरर का लेवल है. तो मिरर कितना हुआ भाई? मिरर हुआ आपका सर h1 plus h2. So what is the total height of the person? Total height of the person is equals to h1 plus h2 का twice. Why twice? So 2h1 twice h2. And what is the minimum height of the mirror? और मिरर का मिनिमम हाइट क्या हुआ फिर? h1. So obviously, so मुझे हाफ हाइट चाहिए. So that is nothing but half that of the height of the person. Now ये हुआ एक इजी क्वेश्चन. इसको थोड़ा टफ बना देते सर. टफ बना देते. चलो सर टफ बना देते. अब क्वेश्चन ये रहा कि सोचो कि एक दीवार है. ओके एक दीवार है, ध्यान से. अब तुम्हारा फ्लोर कहां पर है ये मुझे नहीं पता है. पीछे एक दीवार है, याद रखो. बैक एंड देयर इज अ वॉल. ओके नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी ट्रिकी वन कि तुम कहां पर खड़े हो ये सब कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं. ओके ये सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. फिर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते.
क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द वॉल दैट कैन बी सीन. ओके, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वॉल seen by the person in the mirror. अब सर ये समझ में नहीं आया. हाँ, तुम फ्लोर यहां पर था, सोचो तुम्हारा यहां पर तुम्हारा घर खत्म. ओके, बाहर में एक बड़ा सा दीवार है. तुम किस दीवार का मैक्सिमम कितना हाइट तुम मिरर में देख सकते हो. ये सर कैसे पता चलेगा भाई? सिंपल सा बात है. हाँ, एक चीज तुम्हें बता दिया गया कि मिरर और तुम्हारे दूरी है 4 टाइम्स. सर ये अगर x है तुम्हारा और मिरर वॉल का, सॉरी तुम्हारा और वॉल का जो दूरी है वो है 4 टाइम्स. गिवन व्हाट इज द गिवन कंडीशन? गिवन इज डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द पर्सन इज 4x. तो सर सिंपल सा बात है, ये वॉल को मैं देख सकता हूं. वॉल को तुम कब देखोगे? जब वॉल का ऊपर का हिस्सा से लाइट आएगा. when the light will come from the topmost point, hit the mirror and reach your eye, and when the light from the bottommost point will come and hit your eye, तब तुम वॉल का एकदम टॉपमोस्ट पॉइंट, सर ऊपर भी तो हो सकता है, हाँ ऊपर भी हो सकता है, बट ये एक ही रे होगा ना. वॉल का एक ही पॉइंट से एक ही रे जा सकता है. सोचो वॉल यहां पर है, यहां से ये अगर रे ऐसा जाएगा तो ऐसा आ जाएगा, तुम्हारा आई लेवल पे हिट नहीं करेगा. तो मुझे देखना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट व्हिच आई कैन सी. सो मैक्सिमम हाइट क्या होगा सर? ये हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम हाइट. इसके ऊपर वॉल हो सकता है पर तुम देख नहीं पाओगे, तुम्हें सिर्फ यहां से यहां तक दिखाई देगा. सर वो कैसे सॉल्व करेंगे? सर देखो, ये भी एक सिमिलैरिटी है. ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये अगर फाई है तो ये भी फाई. अब अगर ये h1 है, सोचो तुम लोग शायद किए हो सिमिलैरिटी, पता है ना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस. देखो मैं लिख रहा हूं h1 by x इज इक्वल्स टू, तुम्हें ये पता नहीं. सर मुझे ये पता है, एकदम नहीं पता है. सर ये क्या होगा? सर ये h1 डैश पकड़ लो, h1 डैश. टोटल दूरी कितना है सर? 5x. तो सर h1 डैश कितना हो गया? 5 of h1. हाँ सर बहुत बढ़िया. तो सिमिलरली ये कितना होगा? ये होगा 5 of h2 और ये हो गया आपका 5 of h1. और ये जो बीच में था ये क्या था? ये था h1. So what is the total height of the wall? Total height. Total ये देखो visible height of the wall in the mirror. Total visible height क्या है? Sir 5h1 plus 5h2 plus h1 plus h2. 6h1 plus 6h2, that becomes 6 times of h1 plus h2. That means 6 times the height of the mirror. 6 times the height of the mirror. So this is a beautiful question. Beautiful question. Clear? Okay. सो सर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग जाएंगे लास्ट आज का. इसके बाद एक और क्वेश्चन, वो लास्ट क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे. नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत बढ़िया, ये और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. सर ये क्वेश्चन को जानने के लिए एक तुम्हें जरूरत पड़ेगा. क्या? सोच लो ये है मिरर, ये मिरर है. हाँ सोच लो ये मिरर है
ऊपर से एक रस्सी से मैं एक लाइट यहां पर हैंग कर दिया, ऊपर में रस्सी से एक लाइट यहां पर हैंग कर रहा है और मैं ऐसे ऐसे वॉक करूंगा। आई विल वॉक लाइक दिस वे, आई विल वॉक लाइक दिस वे। सर व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू सी? तुम लोग कैसे देखोगे? सोचो ये मिरर है, हाँ सर मिरर है, ओके। ये एक लाइट है, दिस इज द लाइट, और मैं हूं यहां पर, ओके। ध्यान से, ये मिरर है, ऊपर से लाइट है और मैं लाइट के पीछे हूं, पीछे हूं, हाँ पीछे ही सोच लो, मैं आगे भी हो सकता हूं बट पीछे हूं। सर लाइट और मिरर के बीच सोचो दूरी है x, सोचो दूरी है x, और मिरर और लाइट के बीच दूरी है 3x, और मिरर का लेंथ तुमको बता दिया इज l, मिरर का लेंथ है l। अब मैं कितना स्ट्रेच वॉक करूंगा, मतलब मैं कितना दूरी जाकर इस लाइट ऑब्जेक्ट के बल्ब को देख सकता हूं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस लाइट से एंड ऑफ द मिरर, सोच लो ये हुआ तुम्हारा x और ये हुआ तुम्हारा y, ये एंड ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट करके यहां पर आएगा, एंड ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट करके यहां पर आएगा। तो मैं अगर यहां पर हूंगा, अगर ये है ऑब्जर्वर, अगर मैं यहां पर रहूंगा तो भी तो मुझे ये लाइट दिखने को मिलेगा ना, तो मुझे मिरर में ये दिखने को मिलेगा ये, हाँ। और अगर मैं यहां पर भी रहा तो भी मुझे मिरर में ये लाइट दिखने को मिलेगा, मतलब बल्ब दिखने को मिलेगा, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितना स्ट्रेच वॉक कर सकता हूं ताकि सारा, जब भी मैं मिरर पे देखूंगा, जब भी मतलब मैं यहां पर हूं, मिरर पे देख रहा हूं, वो बल्ब को मैं उस साइड में देखा, मैं यहां पर हूं, मैं मिरर पे देखा, बल्ब को मैं उस साइड पे देखा, तो मैं जहां पर भी हूं मैं कितना स्ट्रेच वॉक कर सकता हूं ताकि मैं मिरर के साइड में देखूंगा ना तो मैं लाइट को देख सकता हूं। सो डिस्टेंस by which the person can move in a straight line so that object is observed in the mirror। हाँ, तुमको दिया क्या है? तुमको दिया है कि भाई ये x है और ये 3x है, ये तुमको दे दिया। बोलो चलो सर हो जाते हैं, बोलो हाँ। अच्छा ये फिर x तुम्हें कैसे, इसको तुम d पकड़ लो और इसको 3d पकड़ लो, ये दे दिया। हाँ ओके करते हैं, बोलो हाँ सर चलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर d हुआ तो ये भी क्या होगा सर, ये भी आपका d ही होगा, एकदम सही बात। ये अगर थीटा होता है, हाँ चलो देख लो सर ये क्या है, ये आपका x है, देखो तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू x बाई डी। हाँ सर आप लिख सकते हो। और ये टोटल कितना है भाई, ये टोटल d प्लस d प्लस 3d 5d, तो ये क्या है सर, ये हो गया x डैश। तो और मैं ये बोल सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू x डैश बाई 5d। इसको ध्यान से देखो, मैं वापस से एक डायग्राम अलग से ड्रॉ कर रहा हूं तुम लोग के लिए। देखो ये हुआ d और ये पूरा हुआ 5d, ये हुआ x और ये हुआ x डैश और ये है थीटा। ओके तो tan थीटा इज इक्वल्स टू x by d and the same tan theta is equals to x dash by 5d. So x by d is equals to x dash by 5d. And what is x dash? X dash is nothing but 5x. Similarly, what is, ये अगर y है तो ये इसको पकड़ लो पूरा, ये है y dash, ये हो जाएगा 5. So what is the total stretch? What is the total stretch? X dash plus y dash is equals to 5 times of x plus y is equals to 5 times the length of the mirror. मिरर का जो लेंथ है, मिरर का जो लेंथ है उसका 5 गुना वॉक में कर सकता हूं ऐसे, तो मुझे पूरा वो लाइट उस तरफ
नजर आएगा, तब भी मुझे नजर आएगा। कंडीशन है ये स्ट्रेच ऑफ पाथ का लेंथ तुम्हें बता दिया गया। अब ये स्ट्रेच ऑफ पाथ का लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसका और इसका वेरिएशन होना चाहिए। इसका डिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो हमारा सम पता चलेगा। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सम्स of class 10 reflection of light. Okay, so I hope so I have shown you beautiful types today. In the next class I will be doing, in the next class of ray optics I will be further proceeding on to plane mirror, clubbing it with spherical mirror. Okay, हम लोग शुरू करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है प्लेन मिरर में, हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।